کہ مثنوی جو ہے وہ بس 7 وزن میں لکھی ہے. یہ وہ حکمتی بڑے اسکالر ہیں. اور میں تاریخ ادبیات در ایران، تاریخ ادبیات ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب شفا والی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ تاریخ ادبیات در ایران کی بات کر رہا ہوں. اس میں انہوں نے اس صفحہ کی سب جانتے ہیں. تو نبی الصفحہ کتاب ہے اور اس کا بھی ترجمہ نہیں ہوا، لیکن اس کا ترجمہ ہو گیا تو زیادہ پاپولر ہو گئی ہے. یہ تو مثنوی جو ہے وہ 7 وزن اس کی پر سے لائی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ پوری طرح جڑی ہوئی ہے اس سے، وہ رباعی ہے. تو پہلے ہم تھوڑا سا رباعی پہ بات کرتے ہیں، پھر تاریخ گوئی پہ بات کریں گے، پھر ہم مثنوی پر بات کریں گے. سب سے حد عزیز تو ہمارا جو چیز ہے وہ ہے غزل. اور غزل کے ظاہر جو سسٹم غزل کا ہے وہ وہی سسٹم قصیدے کا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب قصیدہ لکھا جاتا تھا عرب میں، جو عربی سے ہمارے پاس اسلامک زبان آئی ہے وہ خاص طور سے غزل اور قصیدہ ہے. عرب میں قصیدہ ہی لکھا جاتا تھا، جہالت سے پہلے بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی قصیدے کی بہت اہمیت تھی. اسی کی تشبیہ جو تھی وہ غزل جیسی تھی اور غزل سے لے لی گئی. دونوں کے حیث بالکل ایک ہے، قصیدے کی اور غزل کی. حیث سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایک مطلع ہوگا، اس مطلع کے بعد اسی قافیہ ردیف میں تمام شعر کہے جائیں گے. قصیدے کے شعر مربوط ہوتے ہیں اور غزل کا ہر شعر آزاد ہوتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے بڑا سا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اس میں فرید صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا ساتھی کا، صبر پر جورے رقیبہ چکنم گرنا فنم ہمیں دامن کے در پہلوے گل خالی. انہوں نے پہلو کا استعمال کیا تھا، لیکن عام طور سے یہاں پر پہلو کا استعمال نہیں ہوا ہے. جو زیادہ تر جو مجموعے ہیں شادی کے اس میں انہوں نے صبر پر جورے رقیبہ چکنم گرنا فنم ہمیں دامن کے در پہلو بالکل صحبت گل نہیں ہے، پہلو بالکل خالی ہے. انہوں نے الفاظ یہاں پر استعمال کیا تھا صحبت میں. صحبت میں اور پہلو میں فرق ہے. صحبت کا مطلب یہ ہے بات چیت کرنا، جو فارسی میں ہے اردو میں نہیں، لیکن فارسی کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کرنا. بات چیت پھول بھی کرتے ہیں، یعنی پھول بات نہیں کرتے ہیں، خاص بھی بات کرتے ہیں، کانٹے بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو یہاں پر طریقہ ہے پہلو یعنی برابر میں بات جو ہوتی ہے وہ آمنے سامنے ہوتی ہے. بات چیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھیں، بات چیت اچھی ہوتی ہے. برابر میں دونوں بیٹھیں گے دوسرے سے، بات چیت میں وہ بات نہیں آتی ہے، جو آتی ہے وہ آمنے سامنے ہوتی ہے. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور یہ میڈم زہرا اور یہ حفیظہ بات کریں تو اس میں وہ نہیں ہوگی. دونوں کو سامنے ہیں، بات چیت کے لیے ضروری آمنے سامنے ہوں. تو انہوں نے فریدن صاحب نے یہاں پر شعر پڑھا ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی مجموعہ دیوان میں ضرور دیکھا ہوگا. لیکن جو یہاں پر پہلو میں جو قاری لفظ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پہلو میں جو ہے کانٹے ساتھ رہتے ہیں، جہاں بھی پھول ہے وہاں براؤ میں 2-4 کانٹے موجود ہیں. تو یہ غزل کی نزاکت ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اس میں. اسی طرح تو شادی کا شعر ہوا، حافظ کا شعر بہت مشہور شعر ہے حافظ کا. حافظ کو جو ہے آسماں بارے امانت ماں توانش کشی اور رہے دیکھیے یہاں پر قرائے کار کا نام فعال قرائے دیوانی ہو گیا. اگر فعال نکلنے کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے نمبر کیا ہوگا؟ ہم تو کام کرنے والے تھے نا، تو کام کرنے والی ضرورت ضروری تھا کہ یہاں پر قرائے کار کام کرنے کے لیے متحرک کیا جائے. حافظ کا جو ہے پرانا سب سے جو مقدار میں قرائے کار ہے. لیکن کتنا فرق ہو جاتا ہے ایک لفظ سے. میں نے پہلو اور صحبت کی بات کی، غزل اتنا وزن بھی اپنے آپ کو نزاکت سی ہے کہ نہیں اٹھا پاتا. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو غزل کے لیے اس لیے بتائیں، غزل کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہی ہیں. اور پھر پوری تاریخ اگر ہم چاہیں تو ایک شعر میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ کیوں سجے بزم کہے دیتے ہو دل کی باتیں، بات محبوب سے کرنے کو غزل کہتے ہیں. یہ غزل کی تعریف چھوٹی سی ہے. اور ظاہر غزل میں جو ہے مطلع ہے، کچھ شعر ہوئیں گے اس کے بعد اور مقطع ہوگا. مقطع ہو نہ ہو ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی عام طور سے کہا یہ جاتا ہے کہ مقطع جو آخر میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں مقطع کا کوئی رواج نہیں ہے. غزل میں عربی نہ قصائد میں مقطع ہوتا ہے اور نہ غزل میں مقطع دکھائی دیتا ہے. عربی زبان میں
कहते हैं कि मक्ति का मतलब ये है कि कथा हो गया कलम और यहाँ पर खत्मों की जरूरत नहीं है उसमें नाम आए। इसीलिए हाफिज के अक्सर लफ्जों में तो आखिर में है, लेकिन कहीं नीचे से तीसरे मिसर पर भी है, चौथे शेर में भी नीचे से, और एक मतलब में भी हाफिज ने अपना तसल्लुत किया है। तो ये तो गजल की बात है। उसके बाद कसीदा आता है। कसीदा अभी तक आपने जो सुना है कसीदे के बारे में, दो ही बातें सुनी है। ये कसीदा जो है वो 4 जुज़ पर है। तशबीह के तमहीद, गुरेज, मदह और मुद्दा और दुआ। लेकिन कसीदे की नियम के 2 किस्में कसीदे की हैं। एक तो ये किस्म जो आमतौर से कसीदे में दोनों चीज़ें हैं, तारीफ भी की जाती है और हिजो भी की जाती है, यानी बुराई भी की जाती है। कोई आदमी बुरा है तो उसकी बुराई करना भी कसीदे में आता है, और ज़्यादातर अच्छाई के लिए कसीदा कहा जाता है। और दूसरा जिसमें इन तबादला की ज़रूरत नहीं है, तशबीह, तमहीद, गुरेज, उसको हम खिताबिया कहते हैं और डायरेक्ट शुरू हो जाता है। कसीदे में एक अच्छी बात यह है कि इसकी कई किस्में कसीदे की हैं। मसलन अगर हम अल्लाह की तारीफ में कसीदा करने बैठते हैं तो उसका नाम बदल जाता है। ऐसा कसीदा है कि मतलब हम कहते हैं। और जब रसूल खुदा की तारीफ करने बैठते हैं, सबने किए आकानी के जो मशहूर कसीदे हैं वो उनमें से अक्सर जो है रसूल खुदा की शान में है। पहला कसीदा उनका रसूल खुदा की शान में है, तो वो कसीदा नात कहलाता है। और अगर अइम्मा या अफराद या साहबे फलसफा के बारे में बात की जाती है उसे मनक़बत कहते हैं, वो भी कसीदा होता है। तो कसीदे की सूरत से हम अगर बुजुर्गों में ये बांटना चाहते हैं तो हम नात और मनक़बत, उसके बाद कसीदा रसाई। और इत्तेफाक की बात ये कि चारों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं मसनवी का भी जुज़ है। कसीदा तो उसको जब हम खुदा की शान में कहना चाहेंगे तब हम बनेगी। नात उस वक्त होगी जब रसूल खुदा की शान में कहेंगे, नात बनेगी। अल्लाह की शान में कुछ कहते हैं तो हम होगी। और असहाबे किराम में अइम्मा अत्हार के बारे में कहेंगे तो वो मनक़बत कहलाएंगे। लेकिन अब हम आते हैं मसनवी नहीं, रुबाई और रुबाई की मैं थोड़ा सा आपको रिपोर्ट कर देना चाहता हूँ ताकि बच्चों के धन में रुबाई खास करना है। चल रहे कि नहीं चल रहे? देखिए रुबाई में एक बात बता दें, आप मुशायरे सुनते रहते हैं और सबसे ज़्यादा जहालत जो है वो उन्हीं मुशायरों से शुरू हुई है। सबसे ज़्यादा जहालत जो अदब में और शेर व शायरी में आई है वो इन मुशायरों से आई है जो मुशायरे आजकल हो रहे हैं। मसलन बड़े से बड़ा शायर आता है स्टेज के ऊपर आके कहता है 4 मिसरे मुलाजा कीजिए। तो मेरा मौजूद इस्लाम सफन से है, कोई भी इस्लाम सफन 4 मिसरे नहीं है। बता दूँ आपको निकला कहाँ से। अगर आप लोग दिलावर फिगार को जानते हैं, और बहुत बड़ा मज़ाहिया शायर है, तो दिलावर फिगार ने लिखा है अपने दीवान की दीवाची में कि उनके एक दोस्त थे जो उनको जाहिर थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी उनकी, वो उनको शेर लिख के देते थे, वो पढ़ते थे। एक बार बम्बई के मुशायरे में जो मलाहिया मुशायरा था उसमें मिसरा तरा दिया गया बम्बई में, तो बनाने में लेते थे लोग सब। तो इनके पास बुलावा आया जो बिल्कुल अमजद थे, तो जाहिर थे शायरी कर नहीं सकते थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो दिलावर फिगार के पास पहुँचे, दिलावर फिगार ने उनको शेर लिख के दे दी। बम्बई पहुंचे तो वहाँ शकील बदानी में भी सिसारत कर रहे थे तफाक मुशायरे की। उन्होंने जब पढ़ा तो मुशायरा ढूंढ लिया, सबसे अच्छे शेर उन्हीं के निकले बम्बई की, जहाँ भी थे सबसे अच्छा शेर मुशायरे थे उन्हीं के थे। अब जब जितना बड़ा शायर जिसके सबसे अच्छी गज़ल नहीं हो, जिसकी मज़ाहिर निगाही में वो बाहर निकला तो जाहिर है अखबार वाले और ये सब जो हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए जब उनके पास पहुँचे तो शकील बदानी की बराबर ढूंढ ली। शकील बदानी को तो आप जानते होंगे, सबसे अच्छे गाने जो फिल्मों में हैं वो शकील बदानी के हैं या साहिर लुधियानवी के हैं। बाकी तो गाने आते हैं, लेकिन इन दोनों अच्छे गाने न कोई लिख पाएगा न कोई लिख पाएगा। उनको ये अंदाजा हो गया। मुझे पहला सवाल हुआ, शायद तो सबसे टाप करके आ रहे थे, तो वो इधर देख रहे थे ऑटोग्राफ लेने चाहे तो ऑटोग्राफ ले नहीं सकते, पढ़ाई करी थी। तो शकील बदानी वहाँ पे वही बदानी भी थे, ये भी बदानी भी थे। तो शकील बदानी ने अपने साथ किया, उनको लेके चल दी गई। वहाँ जाके बात हुई, उन्होंने चले गए। उनसे जाकर पूछा भी तुमने क्या किया थी, किसके क्या पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा मैं दिलावर फिगार की। तो दिलावर फिगार की बात थी।
वहाँ से बात शुरू ये होती है कि एक बार उन्हीं ने साहब को शेयर दिया और कहा देखो भी अगर आप रुबाई पढ़ेंगे मुशायरे, आप समझ रही मेरी बात है थोड़ी उनका अगर आप मुशायरे में रुबाई पढ़ेंगे तो आपका रोग और ज्यादा हो जाएगा, और लोगों को पकड़ भी रुबाई भी कर लेता है ये आदमी, और इसका कदम है ना रुबाई कहना है इसको। अब वो जब स्टेज पर खड़े हुए जाके तो रुबाई लफ्ज़ भूल गए, ये याद रहा पता नहीं कहना है। बहुत सोचते हुए उसके बाद बोले सब 4 मिसरे बोला था, ये पहली बार 4 मिसरे का तसव्वुर आया था, तो यहाँ से शुरू हुआ था जहाँ कहा गया था कि तुम्हें रुबाई कहना रूप पड़ेगा तुम्हारा, वहाँ वो रुबाई भूल गए और ये कहिए कि पता नहीं कहना था, लिहाजा उनको 4 मिसरे पढ़ा था, मिसरे के लिए उनके 4 मिसरे हैं। वहाँ एक जाहिल की यहाँ से चली हुई बात वहाँ तक पहुँच चुकी है कि स्टेज का बड़े से बड़ा शायर, चाहे वो नासिया मुशायरा हो, मनकबती मुशायरा हो, या फिर मसालमा हो, मसाले में उम्मीद की जाती है कि पढ़े लिखे लोग आएंगे, वहाँ पर भी 4 मिसरों का रिवाज है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये रिवाज खत्म करें, ये समय कभी यूनिवर्सिटी जैसे बड़े हुए चाहते थे कि बैठ जाओ समय आप, तो वो प्रोफेसर बराबर कहीं बैठी है, क्या बात है कि 4 मिसरे कुछ नहीं जानते हो, बैठ जाओ। तो शेख रसूल साहब बोले कि आप बता दीजिए भी क्या है हुआ था, वहाँ मैंने मेरठ में ये बात बताई। तो अब इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को पढ़ते हैं, क्योंकि आप फारसी में आए हैं, और फारसी जो है ज़ाहिर है उर्दू जितनी भी है वो फारसी से ही आगे बढ़ती है, बगैर फारसी की ओनली उर्दू जिससे भी छोड़ती है उसकी उर्दू खत्म हो जाएगी। ये उर्दू जितने बड़े शायर हैं जितने भी हैं इस दौर के भी, चाहे वो कैफी आज़मी हों, सरदार जाफरी हों, मेहदी मजलूब सुल्तानपुरी हों, सब शमीम करहानी हों, सब ने फारसी में शेर कहे हैं, पढ़े नहीं है नहीं कहे हैं, अक्सर मजमू में शेर मौजूद है। शमीम करहानी है तो यहाँ करनी के मतलब बड़े शमीम जयपुरी, उन्होंने भी यहाँ शाहबाद में फारसी में कलाम सुने हैं। तो ये है, तो हम उस रुबाई की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से 4 मिसरे जो हैं वो उपजे हैं, और हर बड़े से बड़ा शायर अच्छा खासा शायर होता है, लेकिन वो इतना वो मरहूम हो गया 4 मिसरों से कि वो 4 मिसरे कहता है। दोनों में फर्क क्या है बात नहीं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि रुबाई वो फकत अकेला इस्लाम समझना है जो बगैर रूस के आगे नहीं बढ़ता है। मैं आपको इतनी आसानी से बता देता हूँ कि आप पहचान लेंगे कि ये रुबाई है या फकता है, बहुत आसानी से वो आती है। अजी बात ये है कि रुबाई जो है वो पहले चलेगा इसके ही 24 वर्ग हैं। एक बात और बता दें चलें आपको कि रुबाई के ऊपर जब कोई बहस करने बैठता है पूरी किताब लिख देता है कि इसका बस कैसे करना क्या है। मौसमों का कहना यह अरबी में आहंग था, अपनी अपनी बातें सब कहते हैं। कुछ दो व्यक्ति जो है उसके लिए भी जो है वो कह देते हैं कि भाई ये रुबाई है, हालांकि जो मेन किताब जो आई है इस मामले में वो रुबाई शेर फारसी रस्तगार जी डॉक्टर मंसूर रस्तगारी फसाई की किताब है। उन्होंने उसमें रुबाई अलग डिस्कस की है और दो वैसी अलग डिस्कस की है, और इसी से धोखा खा के इकबाल ने के जो रुबाइयाँ हैं वो दो वैसी हैं, और इसका वज़न मफाइज़ फ़ौज़ुन है। इसमें इकबाल की सारी रुबाइयाँ हैं। मेरा अपना कहना जो ये है, जो मैंने मज़मून लिखा है कि ये इकबाल ने अपने आप को जो रुबाइयाँ लिखा है, ये रुबाई सिर्फ रफ़न नहीं लिखी बल्कि रुबाई उन्वान है। हम किसी अपनी शायरी का उन्वान दे दें, जैसे मसनवियों में नाम होते हैं। हाँ वो आवाज़ मेरी आ रही भी तो नहीं आ रही है। अच्छा तो फिर वहाँ बताना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको इसी पे बताना है। तो कहना ऐसा कि जब भी कोई रुबाई होगी, ठीक है, तो उसका पहला जो रुकन होगा, पहला जो लफ्ज़ है, पहला और दूसरा लफ्ज़ जो है वो दोनों में दूसरा और चौथा हर्फ जो है वो साकिन होगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर रुबाई आपके सामने और कथा दोनों रखे हुए हैं तो आपको पहचान करना है, तो आप समझ लीजिए कि रुबाई जब शुरू होगी तो उसका दूसरा हर्फ और चौथा हर्फ साकिन होगा, ठीक है। छठा भी साकिन हो सकता है, वो अलग से बताएंगे, लेकिन पहला और दूसरा चौथा हर्फ साकिन होगा, याद रखिए। जैसे कैसे होगा साकिन, अगर हम अरूजी ज़बान में कहें तो मफ और ऊ। मफ में क्या है,
मीम जो है मुतहर्रिक है और पे साकिन है, ठीक है। मफऊ ऐन पे पेश लगा हुआ है, मुतहर्रिक है और वाव साकिन है, यानी मफऊ जो है वो होना ही होना है। रुबाई फिरकता में जरूरी नहीं है कि मफऊ हो। आप बीच में सवाल पढ़ सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे तो रहे हैं। मिसाल वैसे अल्फाज से मांग रहे हैं। अच्छा, और अल्फाज में और दे देते हैं आप, शेर लिख दें आप, आवाज ये भी नहीं लिखा। कहने का मतलब है वजन का ना शेर के साथ थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए बच्चों का, ये कहने का मतलब। हाँ तो लिख दें। कोई रुबाई किसी को याद है? सर रुकन के साथ नीचे शेर भी लिखते हैं रुबाई। बच्चों का जो पीछे से कहना है, ये जैसे रुकन आप बयान फरमा रहे हैं उसके नीचे कोई रुबाई भी वही है, मैं बच्चों ही पूछा, किसी बच्चे को कोई रुबाई याद है? याद किसे? अरे उमर कोई खयाम, याद है? आमद सहरी निदा से खैर कोई में रुबाई याद है? सर उमर खयाम की लिख दिया सर, आमद सहरी, जी आमद सहरी निदा से मैं खाना माँ। हाँ, कौन बोल रहा था? अच्छा, आप बोल रहे हैं, क्या है बोलिए। सर उमर खयाम के ना, आमद सहरी निदा से मैं खाना माँ। आमद सहरी, हाँ, मफऊल निदा से मैं खाना माँ। निदा पकड़ लो उसको ज़रा, बता हो गया। मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, इसको हो गया। एक ही मिसाल देंगे, एक ही मिसाल से बात देखिए। आमन इसका पार्टी में हुकूमत कहा जाता है, ये हम आमदी कहते हैं हिंदुस्तान में। ये बज़ाहिर एक हर्फ है, ठीक है, लेकिन एक हर्फ नहीं है, इसमें दो हर्फ हैं। अलिफ, अलिफ ज़बर आ, ये है आ, दिखाई दे रहा है ये अलिफ और ये दूसरा अलिफ। पहला अलिफ मुतहर्रिक है, इसमें ज़बर है, और दूसरा अलिफ जो है साकिन है, इस वजह से ये हो गया आ। दूसरा हर्फ और चौथा हर्फ साकिन होगा, पहली पहचान से रुबाई की। पहला हर्फ, चौथा हर्फ साकिन होगा। अच्छा, दूसरा हर्फ, दूसरा और चौथा दूसरा और चौथा साकिन, ये लिखा हुआ है, दूसरा और चौथा हर्फ सबब है। वो साकिन होगा। अब आप पीछे तक आ रही है जी। अब आया पांचवें हर्फ का नंबर। ये साकिन भी हो सकता है और मुतहर्रिक भी हो सकता है। हम पहले साकिन ले रहे हैं, फिर मुतहर्रिक लेंगे, ठीक है। सर ये साकिन नहीं होगा, मुतहर्रिक ही होगा। साहरी का ये सामने काट दिया, आमद सा, ठीक है। ये हमारे 5 हर्फ हो गए। आमद सा यानी क्या मतलब हुआ? पहला, दूसरा, चौथा साकिन, और पहला, तीसरा और पांचवा मुतहर्रिक है। दूसरा चौथा साकिन है, पहला, तीसरा और पांचवा मुतहर्रिक। जैसे आमद सा, ये हो गया। कोई सवाल किसी को करना है? अफजल सवाल भी आपका आइए सर, ये घूमता कोई सवाल तो नहीं है इस पर? है सवाल किसी को? सब समझ में आ गया? आया आपको समझ में आता है कि भाई क्या चीज़ है, कैसे तो होगी। ऐसे लेक्चर के लिए ना कूलर वाला होना अब ये हमारा जो है, तो ये 2 हर्फ जो होते हैं, ये कहलाते हैं चाहिए, सबब। ध्यान रखेंगे बात का। क्या चाहिए? कूलर वाला होता है। आज जो है सबब है, अगर 2 हर्फ हैं, 2 हर्फी लफ्ज है तो कहलाएगा सबब, ठीक है। 3 हर्फी लफ्ज आ जाता है तो उसे वतन कहते हैं। वतन 2 होते हैं, देखते हैं।
वक़्त मजमू और वक़्त मफरूक, ठीक है। जी जी। तो हमारा जो आमद सा है ये हमें तो के बच्चे हैं कि नहीं? औलाद में तीन है, मद सा, तीन हर्फ हो गए, मद सा। मजमू किसे कहते हैं? मजमू अगर दो हरकतें ज़बर ज़ेर पेश एक साथ है और तीन हर्फी लफ्ज़ है, जैसे चमन, ठीक है। चमन में छे मीम नून, शेर मुतहर्रिक, मीम भी मुतहर्रिक, नून साकिन, तीन ये मुतअद्दी मजमू है, यानी जिसमें जो हरकतें हैं जमा हो चुकी हैं। ये आपको इस किताब में नहीं मिला, ये बता रहा हूँ मैं आपको। दो मुतहर्रिक हुरूफ जो है वो जमा होंगे, दो हरकतें जमा होंगी, तीसरा साकिन होगा, ये मुतअद्दी मजमू होगा। और जब हरकतों में फर्क होगा, जैसे ये है मद सा, इसमें मीम मुतहर्रिक है, सीन मुतहर्रिक है और दाल साकिन है, यानी जो हरकतें हैं वो दूर हो गई, इसे हम मफरूक कहते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा अगला रुकन आने वाला है उसका दारो मदार वतन पर है, ठीक है। दारो मदार वतन पर है। अगर पहला रुकन जो है उसका आखिरी हिस्सा जो है वतन है, या मफरूक हो या मजमू हो, और जो हमारा अगला शुरू होगा, बेटे हमसे पूछो, आवाज से हमसे पूछो, बात न करो, अच्छा। जब तक बिल्कुल जहन नहीं मिला है समझ में नहीं आएगा तुम्हारे भाई का, अच्छे समझ में नहीं आती ये बात। मैं आपको चाहता हूँ आप समझ नहीं, आप मेरे जानिया में जिसमें आप डिपार्टमेंट में जो आप बाहर निकले तो आप रुबाई पर किसी से बात कर सकते हैं, पोजिशन में आप आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। अब आमद के बाद वक़्त है, अगला जो रुकन शुरू होगा वो वक़्त से शुरू होगा, ठीक है। वो लफ्ज़ है हरी। हरी आपको इसमें हरी कहाँ पर है कि दिखाई दे रहा है आपको? हरी इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? हरी सीन कट गई है और हरी रह गया, ये मतलब मजमू है हरी। अब यहाँ से शुरू होता है। अब अगर यहाँ मतलब मफरूक हमारा आ गया है या मतलब मजमू आ गया है, तो अब जो हमारा अगला रुकन शुरू होगा वो मतलब से शुरू होगा, मतलब मजमू से शुरू होगा। ये एक सिस्टम है। अगर मतलब मफरूक है उसके बाद भी जो आएगा वो भी मतलब मजमू से शुरू होगा, और मतलब मजमू हो गया है तो वो भी मतलब मजमू से शुरू होगा। तो ये हरी से शुरू हुआ, और हरी जो है मतलब मजमू है। और ये फिर आया निदा। निदा क्या है? नून साकिन, नून मुतहर्रिक, दाल मुतहर्रिक, अलिफ साकिन, ये भी मतलब मजमू है। तो दोनों मतलब मजमू है। अब हमारा इसको चलेगा, जब ये मतलब मजमू है अगला रुकन जो होगा वो भी मतलब मजमू होगा। शुरुआत होगी अगले हमारे उसकी वो भी इससे होगी। एक बात थोड़ी सी बता दूं मैं कि शेर के हिस्से कितने आप लोग जानते हैं? शेर के हिस्से जानते हैं आप लोग? अजुदा शेर नहीं, शेर के हिस्से छोटा है। अजुदा शेर बताओ, भूल गए बोल आपका छोटा है। सर, उसको बिठा लीजिए। सदर इब्तिदा। आमतौर से शेर के हिस्से या 3 होते हैं या 4 होते हैं। अगर 3 हिस्से हैं तो मुसद्दस कहलाता है, इसमें 2 मिसरों में 6 हो जाते हैं। और 4 होते हैं तो मुसम्मन कहलाता है, इसमें 2 मिसरों में 8 हो जाते हैं। समन मानी 8 के हैं और सद्दस मानी 6 के हैं। मुसद्दस हो जाता है अगर 3 में। ये खाने हैं। पहला खाना जो है सदर इब्तिदा। उसको हम कहते हैं अलवुज़ु सलाम। सर, सदर इब्तिदा, सदर इब्तिदा, सदर इब्तिदा। ये है सदर इब्तिदा।
ابتدا. اور یہ آخری کا لاتا ہے اور حجاب پہ حجاب پہ زور اب مذاہب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جگہ ابتدا کہاں ہے؟ دوسرے مسئلے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے شاعر شیخر میں بیٹھتا ہے, پہلے دوسرا مسئلہ کہتا ہے. ہمارے یہ عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, اچھے شاعر ہیں, وہ شاعری کرتے ہیں. اس سے اندازہ ہو, اور بچوں میں بھی اکثر لوگ شاعر ہو گئے. پہلے دوسرا مسئلہ کہتے ہیں, پھر اس کے مناسبت سے پہلا مسئلہ کہا جاتا ہے. اس کی خاص مثال یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پر طے دیا جاتا ہے, اس مسئلے طرح پر کبھی بھی دوسرا مسئلہ نہیں لگاتا, بلکہ پہلا مسئلہ لگاتا ہے اور یہ تضمین جو ہے وہ دوسرے مسئلے کی اس میں پہلے مسئلے کے ذریعے ہوتی ہے. اس لیے جو پہلے کہا جائے گا وہ ہے, اسی لیے دوسرے مسئلے میں ہم نے ابتدا ہے اور ابھی 3 خانے خالی رہ گئے. بچوں میں معلوم بھی 3 خانے بیچ میں خالی ہیں نا, کیا کہیں گے؟ مساوی عظیم ہے عظیم ہاں یہ ہے حشر. حشر نہیں بتایا گیا یار, اس پہ دھیان لگاؤ. ٹھیک ہے, اور یہاں 2 خانے خالی ہیں, دونوں حشر کروائیں گے. حشر اس کی مطلب یہ ہو گئے حشرین. یہ ہو گئے حشرین, یعنی اگر ہمارا مسدس ہے تو پہلا صدر, دوسرا حشر, تیسرا عروس. اور اگر 4 میں ہے, پہلا ابتدا, دوسرا حل, تیسرا حل اور چوتھا سچا. ربائی کے لیے یہ والا چاہیے ہمیں. ربائی جو ہے وہ مسمن میں ہوتی ہے, اور کیونکہ مصنوی کے پاس ہو رہی تھی, اکثر مصنویاں جو زیادہ تر جو ہیں شاہنامے کے علاوہ وہ مسدس میں ہیں. دو بیتی مسدس بھی ہے, مسدس میں ہے. جتنی مصنویاں بھی ہیں شاہنامے کے علاوہ یا شاہنامے کی طرف سے لکھی ہوئی وہ سب کے سب مسمن میں ہے, ورنہ زیادہ تر مصنویاں جو ہیں وہ مسدس میں ہوتی ہیں. لیکن جو ربائی ہے وہ مسمن میں ہے. تو ہم ربائی میں کیا ہوا؟ ابتدا ہوا, حشر ہوا, حشر ہوا, ظہر ہوا. ہم یہاں کہاں تک آ گئے تھے؟ بگاڑ دیں, اس کو بگاڑ دیں. جی. ہمارا پہلا ہوا آمد صاحب, یہ ہمارا صدر. اس کے بعد علی ندا, مفاعل, یہ پہلا حشر. ٹھیک ہے, علی ندا جمع خا, وطد ہے, وطد مجموع ہے. اور کہ ہمارا اگلا جو رکن آئے گا جو شروع ہوگا وہ وطد مجموع سے شروع ہوگا, یعنی 3 حرفی لفظ سے, 3 حرفی لفظ سے ہی شروع ہوگا, جو جس میں پہلے دونوں متحرک ہوں گے اور تیسرا جو ہے وہ ساکن ہے. اور اس میں کیا ہے؟ ذمہ. ذمہ, ذمہ کے معنی میں بتا کے آپ لوگوں کو پیچھے سے ذمہ کے کیا معنی ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ امتحان ہو رہا ہے, دیکھیے آپ بہت سخت میرا لیکچر ہوتا ہے. ہاں مطلب کوئی بتائے, پیچھے سے کوئی بتائے. اچھا مائک میں کوشچن ہے, ذمہ, ذمہ کے کیا معنی ہے پیچھے سے بتائے, نہیں معلوم کسی کو.
कोई बात नहीं, फिक्र ना ये वो नहीं है, इंसान नहीं होता है, लेकिन हाँ साथ साथ चल रहे हैं हम लोग। देखने के लिए ना बच्चों का ध्यान यही है कि नहीं। ये तुम भी बता मुरक्कब है, देते ये मुरक्कब है। अरे बोल देते कोई नहीं। मुरक्कब है ये, जे प्लस में। जे मानी क्या है? जे। ये लफ्ज जे नहीं है, अल है ये। ठीक है, असका मखसूम जो है जे है और मेहमानी शराब से हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? शराब से। आप शराब समझते हैं? तो भाई शराब पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप शराब पी जो नालों में उठ रहे हैं। ये मैं अगला क्या है? खाने। खाने, ठीक है, ये भी यहाँ से कट जाएगा। नून लिखिए सर बस। हो जाएगा खाना, ठीक है। मफ़ऊल मफ़ाइल मफ़ाइल फ़अल। खाना, ये हमने इसमें से निकाल दिए, इसका हमला लगी थी, इसमें बनता है खाने। तरकीब बनने के लिए मज़ाक और मज़ाक हले के साथ हमने काट दिया। अब ये क्या है? ये मैं ये वतद मजमून था, और ये क्या है? वतद मफ़रूक़। दोनों वतद हैं, खाना भी वतद मफ़रूक़ है और ज़ेमे जो है वो वतद मजमून है। तो इसके बाद जो अगला आना है वो वतद मजमून आना है। ठीक है, जो आखिरी वतद आना सर, नोट मजमून। इमाम ये है तो हमजा लगी सी, और ये इमाम, तो ये बन जाएगा इमाम इमाम। इमाम। मफ़ऊल मफ़ाइल मफ़ाइल फ़अल। इमाम, ठीक है, ये क्या बन गया? इमाम बन गया, इमाम। अब हमारा ये जो आ गया, कंप्लीट हो गया कि आमद सा हरी निदा जिमे खाना इमाम। ठीक है, ये रुबाई का एक वज़न है, और मेरे ख्याल से ये वज़न आपके समझ में आ गया होगा। शुरुआत अगर आपने देख ली है तो मफूलों से है, यानी आमद सा, ठीक है, कताबी से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन हर कता से शुरू नहीं होता, कभी इत्तेफाक कता से शुरू होता हो, वरना खत्ते की जरूरत नहीं है कि इससे हो। तो इसकी मैंने दूसरी पहचान आपको बताई कि अगला जो उसका रुकन होगा वो, अगर ये वतद मफरूक है या मजमू है तो वतद मजमू आएगा, उसमें क्या नाम है, कत्ते में कभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब कोई ऐसा ले लेते हैं जो हमारे 6 हर्फ में हो, ये बिगाड़ दे। इसको समझ में आ गया? कोई सवाल किसी का है? कोई नहीं है। आपको पहला मसला समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से शुरू होती है। कोई भी किसी को सवाल हो तो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक, एक मसले के बाद और वो करेंगे हम, उसके बाद आपका दूसरा शुरू कर देंगे। गरमाई नफुरी तौन मजन मस्तम रहा। अगर मैं आपको यहाँ आगे बदल दूँ, मैं बदल दूंगा, यहाँ भी आप बदल दूँ तो नहीं आप नहीं आप शाम तक क्लास में बैठे रहेंगे। अजीब पता करो ट्राई कर ये वाला रिकॉर्ड करना था, मैं हाथ पकड़ हाथ तक मना कर रहा है यार, हाथ पकड़ने लगे। मुझे तो ध्यान नहीं था, मुझे तक कुछ हो नहीं है। बस ये सोच रहा है नहीं सर, 11 बजे से तो हम 15 तक यहाँ पर इधर पकड़ो जरा। नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज सिर्फ यही।
इधर निस्त एक तो आवाज़ का मसला है, इसको पकड़ो। नहीं मैं देख कर रहा हूँ, तुम बैठो। इसको रिकॉर्ड करना। जगह छोड़ लो पीछे में। अब ये देखिए दूसरी तरीके का है। पहले मैंने आपको बताया था कि दूसरा और चौथा साकिन होगा, ठीक है, और पहला और तीसरा और पांचवा मुतहर्रिक, ठीक है। अब देखिए, अब आता है पहला, तीसरा और पांचवा, तीनों मुतहर्रिक होंगे, और दूसरा, चौथा और छठा ये साकिन होंगे, ठीक है। यानी रुबाई का मतलब ये है कि तीसरा और चौथा साकिन होना ही होना है, छठा भी साकिन हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा वजन है इसका। पहला वजन जो है 12 वजन जो है वो उससे चलेंगे, तीसरा, दूसरा और चौथा साकिन होगा, और 12 वजन वो हैं जिसमें दूसरा, चौथा, छठा भी साकिन होगा, ठीक है। मिसाल ठीक है। बात नहीं भाई, बात नहीं, बिल्कुल भी बात करना हमसे करो, जो पूछना है हमसे पूछो, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। बेफिक्र के साथ जो सवाल हो आप कर सकते हैं। लेक्चर में आमतौर सवाल नहीं होते हैं, लेकिन ये लेक्चर ऐसा है इसमें आप हर वक्त सवाल कर सकते हैं, ठीक है। आप बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और अगर नहीं सीखना है तो कोई परेशानी नहीं है, आप बाहर जाके बात कर सकते हैं। ये समझ में आ गई आपके? ये दूसरा, चौथा और छठा साकिन होगा, जैसे कि इसमें मौजूद है सा, ले, बी, साकिन, ठीक है। अब जो बात आएगी, अब जब ये जो है बी जो आया आखिर का हिस्सा, ये मदद नहीं है, सबब है। सबब यानी दो हर्फी लफ्ज़, गुल, बन, ता, ठीक, खा, ये सबब है, जिसमें दूसरा दो हर्फी लफ्ज़ होंगे वो सबब कहलाते हैं। मैंने बताया गुल है, सिन है, सन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये रुकन खत्म होता है सबब पर। अब रुबाई के लिए जरूरी है, अब जो दूसरा रुकन आएगा वो सबब से शुरू होगा,
अब मतलब मजमू से शुरू नहीं होगा। यही खास पहचान है रुबाई की, और ये चीज़ आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी जो मैं आपको इस वक्त बताया हूँ। मैडम बैठी हैं और किताबें पढ़ी होंगी, किसी किताब में न नोट्स मिलेगी और मन में। अब क्या हुआ फिर? क्या है सबब है, ठीक है। देखिए फिर प्रभु आ गया, फिर ये बता आ गया, आखिरी हिस्सा जो बता आ गया। अब तो अगला रुकना आएगा, वो बता से आएगा। फिर किसी भी इस्लामी समझ में चीज नहीं है जो रुबाई में है, और जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कोई इससे अच्छा बता दे, लेकिन मुझे कम उम्मीद है। दुनिया में बड़े बड़े दानिशवर पैदा हुए हैं और हैं इस वक्त भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई बता पाए जो मैं आपको बता दूँ। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, बताएंगे लोग जरूर, लेकिन मैंने कोशिश की अपने बच्चों के लिए कि आसान से आसान करके बताने की कोशिश करूँ। और जब यहाँ पर बदल आ गया, ये क्या है? ये हश्व है, ठीक है, हश्व है ना। ये हमारा सदर इब्तिदा में सदर था, तो ये हश्व है। अब ये आगे अब जो अगर शुरू होगा वो क्या होगा? मतलब से शुरू होगा। अल्लाह हश्र जो है वो भी मतलब से शुरू होगा। नबाश ये हो गया बाशन, नबाशन। नबा जो है वसत, शम सबब, और बाद में आके आया है तन। देखिए ये सबब का खत्म हुआ था, दो हरफ का खत्म हुआ था, ये दो हरफ से शुरू हुआ, ठीक है। ये बतन का खत्म हुआ था, ये बतन से शुरू हुआ। अब ये नबाशन तन, ठीक है। नबाशन लफ्ज़ है तन्हा। ये रुबाई का कमाल है कि तन्हा को जो है उसने मरकब कर दिया। अगर उर्दू में वैसे कहना और सुना होगा वो शेर के पहले उसने मस्त कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। हम यहाँ कोई काम कर रहे हैं, तन्हा के टुकड़े कर दिए। ये है तन क्या है? सबब। दो हरफ लफ्ज़, सबब को शामिल में आए दो हरफ लफ्ज़। जब दो हरफ लफ्ज़ आएगा तो अगला रुकन जो होगा वो दो हरफ शुरुआत, ठीक है। वो क्या है? हाँ। ये हो गया। दो तरीके के वज़न हमारे पास हैं, एक में दूसरा, चौथा और छठा साकिन होगा। जब ये होगा तो अगला जो है हमारा दो हरफ लफ्ज़ आएगा। एक में क्या था? चौथा, दूसरा और चौथा साकिन था, पांचवा मुतहर्रिक था, उसके बाद मतलब मखलूक बना था, तो हमारा वक्त से शुरू होगा, तीन हरफ लफ्ज़ शुरू होगा। ये मेरे रुबाई का वज़न सब मैंने बता दिया, जो आपको क्योंकि उससे मज़ामीन के बात कुछ भी नहीं करूँगा। ये अभी अगली शीट में बात करना है मसनवी पर। अभी क्लियर हो गया सीधे उसका खत्ते का और रुबाई का वज़न आप ऑर्डर कर सकने की पोजीशन में आ गए तो देख लीजिए, ठीक है जी। एक बात और बता दें आपको हम खत्ते में और रुबाई के बारे में। रुबाई हमेशा 4 मिसरों की होगी, इससे ज्यादा भी नहीं होगी, इससे कम भी नहीं होगी, ठीक है। रुबाई हमेशा मौलाना हमसे पूछिए, मौलाना हमसे पूछिए क्या नाम है आपका? आपकी करते गए अभी क्या नाम है? अली असगर मचवाई। हमसे मुलाकात नजर मिलाई हमसे, ठीक है। हमसे नजर मिला बात कीजिए आप, ये नहीं अब सीखना है, वो नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, सीखना है तो नजर मिला के बात की, हम नजर मिला के बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। और कथा जो है उसके अशार की कोई तादाद नहीं है। आमतौर से लोग जो समझते हैं 4 मिसरों में पता होता है, नहीं, खत्ते में 8 मिसरे भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 12 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। कसीदे गज़ल की तरह खत्ता के
भी होते हैं, बस ये है कि उसमें मजमून एक दूसरे से मजबूत होगा, गजल का शेर आजाद होगा, मजबूत होगा, कोई प्रॉब्लम दोनों में नहीं है। ठीक है, रुबाई का चैप्टर खत्म हो गया। यस। एक बात बता दूं आखिर में कि ईरान में रुबाई का सबसे बड़ा शायर खयाम कहलाता है और हमारे हिंदुस्तान में रुबाई का सबसे बड़ा शायर सरमद कहलाता है, सलमा शरीफ। इसका मतलब ये नहीं कि और लोगों ने रुबाइयाँ नहीं कही, बहुत लोगों ने तकरीबन फारसी में तो सभी ने रुबाइयाँ कही हैं और दौर हाजिर में भी बहार ने भी रुबाइयाँ कही हैं। और नीमा युशीन जो शेर नौकर मुजीद कहलाते हैं, उनको फिर करके अगर आपने लेक्चर रखा तो मैं बताऊंगा कि नीमा युशीन जो है शेरों को शायरी नहीं है, उन्होंने शेरों को पहले सबको गलत रास्ते पर डाल दिया और उसी रास्ते पर चलते रहे, ये बहुत कम होता है। नीमा युशीन ने सबको उल्टे रास्ते में डाल दिया, उसी के रास्ते पर चलते रहे, उसके लिए कभी कभी जाने का मौका अगले साल या उससे अगले साल जिंदा है तो उससे अगले साल दिए। तो नीमा युशीन से बात करने की बहुत है, अल्लाह का शुक्र है मैं इस बार जब निकला हूँ से ये चल रहा है इलेक्शन ये हो दूसरा और चौथा हवाई जहाज, दूसरा और चौथा इंशाल्लाह चौथा लेक्चर आज तक नीमा युशीन के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं, वो समझते हैं कि शेर नौका शायर है, वो शेर नौका शायरी की मैं मानता हूँ, मैं उसे रोशिका शायर मानता हूँ। क्या अल्लाह की की उन्होंने वो शातिर आदमी से नीमा युशीन के आपके सब कुछ उसे शायर में लगा दिया और अपने आप रास्ते के शायर बन गए। नेता वाली सुपत्ति सर वो एक बात तो बता दीजिए कि आपकी भी रुबाई का मंजूर आपका रुबाई का मंजूर कराम आ चुका है कोई प्रधान भी आई थी रुबाई अब आते हैं मतलब कितना टाइम लगता है, शाम तक क्लास है, टीचर्स की शाम तक क्लास है। ये मैन होता ये था मैन होता मकसूद तो यही था। जब शाम तक सही चला तो खाना का मौका चाहिए। ख्वाजा की जबकि रुबाई आपकी भी जो बड़ी तारीफ करी है, ख्वाजा की जबकि रुबाई आपकी बहुत रुबाइयाँ हैं इंडिया में ख्वाजा की को कहा जाता है, मतलब सरमद से ऊपर कहा जाता है। जी जी सर, काफी साहब ने कहना चाह रहा है ना, मैंने काफी साहब मैं दो नाम दूसरे शायरों के लिए सरमद से बड़ा शायर कोई नहीं है। जो कहा इंडिया में सरमद है और ईरान में जो है वो खैयाम। देखिए अलग बात है, मैं खैयाम को बड़ा शायर ना मानूं तो मेरे मानने में कोई और नहीं पड़ता। जी खैयाम बड़ा शायर दुनिया मानती है, मानती रहेगी। मैं कैसे भी शादी करूँगा खैयाम बड़ा शायर नहीं है, लेकिन मेरे शादी करने में कुछ नहीं है। जी इसको सरमद ने बड़े शायर जी जी और सरमद को अगर देखेंगे, सरमद की रुबाई सुनाए देते हैं आपको। अच्छा ऐसे सुना वो भी मैंने बताया ना, दो लफ्ज़ बात की आप दो में आए थे, मैं भारतीय में बता रहा था कि किस तरीके से एक लफ्ज़ से पानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। फरीद साहब ने पढ़ा था, उससे बात की मैंने, फिर एक हाफिज़ से बात की। अब मैं कहीं की बात करता हूँ। देखिए जो सरमद की रुबाई है, अंकस कितना काले जहांबानी दात। अब ये क्या है, काले जहांबानी दात, और एक उसमें लिखा है कि अंकस की तरह ताजे जहांबानी जात। अभी कितना फर्क है, एक लफ्ज़ का फर्क है मगर, काले जहांबानी जात और ताजे जहांबानी जात। अंकस की तरह काले जहांबानी जात, वो ज़ात अल्लाह की ज़ात जिसने तुझे हुकूमत बख्श दी है, हुकूमत का काम दिया है। काम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक जगह मिलता है ताज जहांबानी जात, ताज एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसका अंदाज़ नहीं लगा सकते ताज का। काम तो छोटी मोटी चीज़ है, जब ताज आ गया तो आ गया। अंकस की तरह काले जहांबानी जात मारा हमें असबाब में परेशानी जात, और हमें क्या दे दिया, परेशानी दे दी इसको। वो शान से लिबास करके ऐबे दी, वहां लिबास पहना जाता है जहाँ ऐब होता है। ठीक है, लिबास की जरूरत इस्लाम में कहाँ होता है, ये जहाँ ध्यान दी जाएगी उनकी जगह, वो उस जगह पर लिबास के लिए कहा है। और बेरवाना लिबास यानी था जिसमें कोई ऐब ही नहीं है,
इनका कहीं कुछ ऐप नहीं है, जहन में ही ऐप नहीं है जिनके। उन्हें क्या दिया है? उरियानी जात, लिबास उरियानी जात, वो उनको लिबास की जरूरत ही नहीं है। इसकी तारीख का है बताओ, 5 मिनट लगी है भाई। आप जानते होंगे सरमत को, इस पत्रिके इस रुबाई की अजीब तारीख है। कहते हैं कि सरमत से बहुत सी चीजें मंसूब है। किसी मस्जिद जहाँ से नमक जाफी साहब बैठे हुए हैं, वो नमाज उसी में पढ़ते थे। एक बार नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज पढ़ते में जो नमाज पढ़ा रहा था, तो उसका नजर जो थी, दिमाग में से ये बात आई, यार मेरे पास मैं इतने लोगों में नमाज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा तो ही नहीं। तो आमतौर से मस्जिद के इमाम होते हैं, आप देखते हो कि चौकों ज़्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे की इतनी इज्जत है और पैसा है नहीं। तो सरमत ने फौरन ही बहुत जोर से पैर मारा, कहीं नमाज तोड़ दी, और वो बोले इस पैर के नीचे खजाना है, यानी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ उसके जो खजाना है। नमाज खत्म करके मुफ्ती साहब बैठ गए, क्या बदतमीजी, आपने सभी नमाज खराब कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब उसने कहा नमाज तो मैं खराब नहीं करता, आप खराब कर रहे थे। मैंने तो अपने अकेले की नमाज खराब की थी, बोली मैं नहीं, आप नमाज माने मालना है नहीं, क्यों नहीं था? आप तो ये सोच रहे थे। अब दिमाग की बात सोचना भी आसान काम नहीं, हमारा पढ़ाने वाला नमाज क्या सोच रहा है? सरमत कैसी है, 5 सरमत खड़े हुए सोच रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पाँव के नीचे जो है तो खजाना है। ये कैफियत थी सरमत की। अब जब औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथी से सरमत, मतलब पानी के साथी, सबने हथियार डाल दिए औरंगजेब के सामने, और यहाँ तक के जो दारा शिकोह से खरीदी थी मुल्ला शाह बदख्शी, उनको मुझे वाकई हैरत होती है, शर्म आती है इस कारनामे से। मुल्ला शाह बदख्शी ने भी औरंगजेब के सामने हथियार डाल दिए और दारा शिकोह को छोड़ दिया, और कुछ 2 साल जिंदा रहे। इसके बाद बहुत दिन जिंदा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने गद्दारी की। मुल्ला शाह बदख्शी की कहना गद्दारी की बहुत मुश्किल काम है, ये मैंने आपको नजरिया है। बहुत बड़ी स्थिति है, लाहिर दारा शिकोह के उस्ताद हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने दारा शिकोह के खिलाफ फतवा देने वाले की हिमायत की और औरंगजेब के साथ हो गए। ये मैं समझता हूँ कि जो ऐसा आदमी था, जो उनके लिए खा रहता था, जो कहते से करता रहता था, उन्हें अपना बादशाह मानता था। अगर आप उनका दीवान पढ़ेंगे तो उसमें करीब 100 जगह पर लफ्ज़ शाह का इस्तेमाल हुआ है गजल के दीवान में, 100 जगह पर। तो अब लेकिन सरमत नहीं बदले, सरमत को उस चक्कर में ये कट करने के लिए खड़ा कर दिया गया। और जब उससे आखिर में क्या चाहते हैं, तो उसने एक बात पढ़ी थी, कहीं भी थी वो पढ़ी भी थी कि वो ज़ात जिसके तुझे ये बादशाही बख्शी है, मुझे जो ये परेशानी कोई परेशानी हमारी से ये उस वक्त का एक मंजर है इस रवाई का, और इसीलिए इसमें काले जहाँ पानी पिछले कर दिया है। बाकी मैं समझता हूँ कि ताजे जहाँ पानी ही ज़्यादा बेहतर है। आप जानते हैं हरियाणी को अक्सर बहस रहती है, समझने में रहती है। अब हम सीखते हैं मसले, ठीक है? चले जी बिल्कुल। अरे कोई छोड़ देता हूँ, फिर ये वो वरना तो रिवाई का टाइम बीत गया। देखिए मसले की इब्तिदा किन हालात में हुई, पहले हमें ये देखना है। हम इसकी इब्तिदा हम वहाँ से करें जब ईरान को फतेह कर दिया अरबों ने। मैं यहाँ पर मुसलमानों को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरबों ने ईरान को फतेह कर लिया, अरब ने जो फतेह किया था वो मुसलमानों की ताकत पर किया था, लेकिन उन मुसलमानों में 2 तरीके के मुसलमान थे, मुनाफिक भी थे और सहाबी भी थे, 2 तरीके के थे। तो कुरान ने मुनाफिक की बहुत साफ सूरत है, तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते कि मुनाफिकों के उसमें शामिल थे। और उसके बाद जो है वो जुल्म का वाला गर्म हो गया, क्योंकि जो अमर की हुकूमत है इसमें हम किसी भी जात को बहस कर सकते हैं, लेकिन कानूनों को बहस नहीं कर सकते कि उस दौर में जुल्म बहुत ज्यादा हुआ। बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए। अगर हम ये देखें, मोहम्मद बिन कासिम जिसने इतनी बड़ी फतह की थी, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया।
बहुत बेदर्दी के साथ उसकी खाल में भूसा भर दिया गया। तो ये चीज़ें उस ज़माने में थी। मैंने अबुल मोहम्मद कासिम का नाम इसलिए लिया तो इतना बड़ा फात है और सिंध में उसकी बाकायदा पूजा शुरू हो गई थी। इतना इंसाफ बरता हुआ, हैरत हो गई। इतना बड़ा सफर साला और इतना इंसाफ पसंद कि जब वो यहाँ से गया है तो उसके मुजस्समे बन चुके थे। और पहले हुजूर जो थे हमारे समुदाय में बैठी हुई हैं, वहाँ की बाकायदा पूजा शुरू हो गई थी मोहम्मद बिन कासिम की, उसकी किरदार की वजह से ऐसा किरदार। लेकिन उसके साथ भी जुल्म हुआ। तो वो हुकूमत जो थी इतनी जुल्म थी तो सोची कि ईरान में उन्होंने क्या किया, उसको जुल्म का बर्बाद कर दिया। लेकिन अरब की तहजीब का ताल्लुक फकत हमारे हुजूर से है या उनके खानदान से। अगर हुजूर का खानदान ना होता या हुजूर ना होते तो अरब में कोई तहजीब, कोई कल्चर नहीं था। कुरान में भी लिखा है और सुबह सुबह पढ़ते हुए तो बहुत साफ तौर से वादा कर दिया गया है कि जितने भी खराब काम हो सकते, सबसे बड़ा काम खराब तो यही था कि बेटी को जिंदा दफन कर देना। अरे मार के बंद कर दो, जहर देकर दफन कर दो, तकलीफ से नहीं होगी ना। आप अपनी बच्ची को नहीं पसंद करते हैं, जहर दे दीजिए, दफन कर दीजिए, जिंदा दफन कर दिया। तो तारीख में यही लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा कल्चर था। तो ये कल्चर हमारे दूर में समान होता। लेकिन ईरान का कल्चर जो है वो उससे पहले का है। साफानी दौर का कल्चर हो या उससे पहले काशीमी दौर का हो या हकामशी दौर का हो, सब कल्चर था ईरान का। यूनान और ईरान वो जो थे वो दोनों हम काफी हैं। यूनान और ईरान दोनों कल्चर जो सबसे पुराना कल्चर है। वहाँ पर जब ये मारकाट शुरू हुई ईरान में तो लोग हैबत में आ गए और सबसे ज्यादा तरीके से जो इस्लाम को बोल गया वो ईरान में उनके बहुत आसानी के साथ। उसकी एक वजह ये थी कि जो जबरदस्ती मजहब था वो मजहब हिंदुस्तान की तरह से, जैसे कि हिंदुस्तान में पंडित जो चाहते हैं वो करते हैं और जो शेड्यूल कास्ट वगैरह हम जैसे कहें हम उन पर जो पहले होता था वो आज भी तो कमी नहीं है इसमें, जो बस चल जाता है। तो वो ईरान में था जबरदस्ती मजहब में कोई वो नहीं थी, कोई अवस्था पढ़ नहीं सकता था। शायद आपने पढ़ा हो तो अवस्था को कोई पढ़ लेता था, कोशिश करता था अवस्था को पढ़ने की तो कुछ सजा दी जाती थी। तो वो ऐसी एक मजहब की तलाश में थी उस वक्त जो बैठी हुई थी कि हमारे साथ कोई एक ऐसा मजहब आ जाए जिसमें बराबरी का सलूक हमारे साथ हो। हिंदुस्तान में भी जो आज बाहर से आज बहुत ज्यादा मुसलमान है उसी लिए हैं कि उन्हें बराबरी का सलूक जो है इस्लाम में मिला था। इस्लाम में गुलामी दी थी कि अगर कोई बिल्कुल नीचे तबके का आदमी भी है वो चाहे पहले सच में खड़ा हो जाए तो रोक नहीं सकता उसको। आज भी इस्लाम में सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमानों में आज भी अगर कोई जामा मस्जिद में जाके पहले सच में खड़ा हो जाता है, पहले तो कोई हटा नहीं सकता क्या बन जाएगा यहाँ से, किसी की हिम्मत नहीं। फकत एक जो नमाज पढ़ाने वाला है उसको नहीं हटा सकते, आपको पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। लेकिन अगर पीछे में खड़ा हो जाता है तो आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे कहने में बन जाना कितनी गरीब हो, जूती टाँगता हो या जूती काटता हो, कोई नहीं। वो चाहे खड़ा हो जाएगा, ये चीज किसी और जगह पर नहीं है। ये आज भी है। मतलब इसलिए के बावजूद अमीरी और गरीबी का नहीं करते, इस्लाम में नहीं है। शादी ब्याह में आमतौर से दिखाई देता है, लेकिन जो मस्जिद में जाएगा इबादत खाने में पहुंच जाएगा और वो बादशाह के बराबर है। अगर वो बादशाह के बराबर खड़ा हो गया है तो किसी लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसको वहां उसको हटाना। बात तो सजा अलग बात है। बाहर आके कहीं कैसे बड़े हो गए कैसे आ जाएगी सब लोग खड़े हो गए, महमूद तो यार ये मशहूर है आयात जो आपने फरमाया न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा, ये आज भी है। लेकिन मंदिरों में आज भी आपको आकर शक्ति भी है तो मंदिरों का नीचा से नहीं जाएगा। आप याद रखिए, ये अजीब बात है। मगर इसीलिए जो इस तलाश में से कोई ऐसा मसला आ जाए, इसलिए ईरान के ज्यादातर लोग जो है वो मुसलमान हो गए। लेकिन मैंने बताया कि वो जो लश्कर ईरान में पहुंचा था वो लश्कर नहीं था जो खुलफा रास्ता के जमाने के हिसाब से जाना जमाना वही है, लेकिन तरबियत जो थी उस लश्कर की वो वाली नहीं थी। अब लोगों ना तो बोलने की ताकत रही क्योंकि ईरानी शेख भी हमेशा से कहता हुआ है, न पढ़ने तो सब लोग अपने बंद हो गए। और कोई बोलता था आपको बताया कि अजीज साहब की क्या हालत है और उधर अखबारी क्या हालत है बोलने वालों में, आपने घर के सामने हो तो सबके सामने।
तो वो इसलिए ये लोग जो थे जिनका ताल्लुक तसव्वुफ से था, वो लोग कभी खामोश रहे, कभी अंदर अंदर खाना अपनी बातचीत करते रहे, और यहाँ तक के अब्बासी हुकूमत आई। अब्बासी हुकूमत में वो वक्त आया कि जब हाजी का इंतकाल हुआ तो उसके देखिए 3 से 2 बेटों ने हवा शुरू हुआ कि मसले की तारीफ बताऊँ, उसने कहानी सुनानी, मसले की तारीफ बताता हूँ मैं आपको, आप सोचते हैं कहानी शुरू कर दी इन्होंने। अब जब अमीन रशीद और मामून रशीद का ज़माना आया तो अमीन रशीद को खिलाफत मिली थी, यानी हारून रशीद ने अपना खलीफा जो है वो अमीन रशीद को बनाया था। उसकी माँ अरब थी, ज़ुबैदा, बहुत नेक खातून थी, अब लोग उसकी इज्जत करते हैं। और बड़े बड़े कारनामे ज़ुबैदा के तो आपने देखे होंगे, तो खास तौर से पानी का जो उसने नहर बनवाई थी हाजियों के लिए, क्या उसकी बात थी ये है। और अभी कहाँ? और मामून रशीद को थोड़ा सा हिस्सा ईरान कर दिया था ताकि ये भूखे ना रहें, मेरे बेटे हुकूमत करते हैं। खुरासान का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ईरान का, क्योंकि इनकी माँ ईरानी थी, मामून रशीद की माँ ईरानी थी और अमीर रशीद की माँ ज़ुबैदा अरब थी। लेकिन वो सादी ने कहा अपनी हिदायत में कि एक कंबल में 5 फकीर रह सकते हैं, लेकिन एक मोहल्ले में 2 नेता नहीं हो सकते, एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं हो सकते। तो खलीफा था अमीर रशीद, बड़ा और बड़ा भाई भी था, लेकिन फिर गवारा नहीं हुआ कि छोटी सी हुकूमत भी मामून रशीद के पास रहे। ये अजीब बात। उसने अपना खत लिखा मामून रशीद, अमीर रशीद ने, कि भाई हम लोग अपने वालिद के ज़माने में दस्तरखान में खाना खाते थे, बहुत दिन हो गए हम लोग दस्तरखान में बैठे खाना नहीं खाया है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप आएँ और हम लोग दस्तरखान में बैठे दोबारा खाना खाएं। देख कितना प्यारा भरा हो। आप सोचते हो इससे अच्छा खत क्या हो सकता है दो भाइयों के बीच में? दिखता है कि हम लोग अपने वालिद के ज़माने में साथ साथ बैठ दस्तरखान में खाना खाते थे, एक मुद्दत हो गई साथ साथ बैठे। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम लोग फिर एक बार दस्तरखान में बैठ के खाना खाएं। लेकिन मामून रशीद ईरान में था, और जहीन आज भी आप देख रहे हैं ईरान की पोजीशन जो है, फिलिस्तीन के ज़माने में आपने देखा है कि आज भी अगर मुसलमानों के कहीं से तो ताल्लुक बचाने वाला कोई है तो ईरान है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तो सब लोग कह रहे हैं, जो लोग सऊदी के सज्जे करते थे वो लोग भी रहने मजबूर हो गए कि अगर ईरान ना होता तो आज ये दुनिया जो है मुसलमानों के लिए क़यामत फेज़ बनी बन के और ज़्यादा क़यामत फेज़ होती। उनके पास एक उनका वजीर था और सिपह सालार भी था, उसका नाम था ताहिर ज़ुल नबीन। क्या नाम था? इस तारीख में आपको बहुत तारीख से लेके जा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ फारसी की शायरी का ताल्लुक सब तारीख से है। उसने बिठाला पीछे खत आया है तो उसने कहा आप देंगे खत लगेगा आपको, यानी कितना प्यारा बड़ा खत मैंने आपको सुनाया। और कहा क्या जा रहा है कि रात जाएंगे जब तक कर देगा आपको ताहिर नबी ने। अब साथी ने कभी खत करके कुछ हो सकता है ये बात। उन्होंने जवाब दिया, मिलकर जवाब दिया कि भाई हमारा दिल होता है कि भाई बैठेंगे इस वक्त मेरी तबीयत जो है नासाज है और मैं मजबूर हूँ। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है वो मैं आपके दस्तरखान पर आकर जो भी कहते हैं टुकड़े तोड़ूंगा, जो भी उसे खत में लिखा था उसने प्यार से उसने भी लिख दिया। ताहिर नबी ने कहा मामून रशीद से कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको हमला हो जाएगा। देख रहे हैं आप ज़हन, उसने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर मामून रशीद की फौजें जो हमला कर देंगी, आप तैयार हो जाइए। तैयारी तो यमीनन कोई करना थी, इजाजत चाहिए थी, उन्होंने इजाजत दे दी और उसने अपने सारे सिपाही जैसे लश्कर जैसा वो शफाफी एक जगह पर लगा दिया। और वही हुआ, 3 दिन तो 7 दिन के अंदर अंदर उनकी लश्कर की फौजें
اس کے آگے حملہ کرنے کے لیے امیر رشید کی، کیونکہ ساجد کو بات کو دکھانا کہ یہ حکومت میں تو بادشاہ نہیں سکتے، کمبل میں 5 وزیر جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں. فوجیں لگا دی گئی. اس نے بھی ظاہر کہاں پورا خلافت کم سے کم کہتے ہیں کہ 2/3 دنیا تھی اس وقت، 2/3 دنیا. اور ان کے پاس کیا ہوگا، بہت سے ہوں گے، 10 ڈسٹرکٹ ہوں گے خراسان کے آس پاس صوبے میں، خراسان میں چھوٹا صوبہ تھا ان کے پاس. اور جیسی فوجیں آگے بڑھی، رات میں ہی طاہر زمینی فوج نے ان پر حملہ کر دیا اور اس طریقے سے خطبہ کر دیا فوجیوں کے بھاگنے کی وقت نہیں ملا. پہلی شکست جو ہے امیر رشید کی فوج کو یہاں پر ہوئی، خلافت کی فوج جو ہے خلافت کی فوج تھی، لاکھوں لوگوں سے، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 20,000 25,000 1 لاکھ زیادہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پوری خلافت تھی. اب جب یہ یہاں سے ہوگی بچے بھاگ دو گے، جب وہاں پہنچے کتاب بھاگ ہو گیا. اب زمین نے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہم کر کے حملہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر. کیا ہوا جی صاحب؟ اور اس کے بعد جنگ ہوئی، اس میں طاہر زمین یا ایرانی سے سرداروں نے پورے لشکر کو شکست دی اور امیر رشید بصرہ میں کشتی کے ذریعے سے پار ہو کے نکلنا چاہتا تھا اور مامون رشید چاہتا تھا کہ وہ نکل جائے، لیکن طاہر زمین کے ساتھیوں نے اس کو وہیں پر قتل کیا اور وہ اپنی حکومت قائم کی. اب یہاں سے پہلی بار ایرانی ماں کے بیٹے کے بعد حکومت و خلافت آ گئی. اب جب یہ خلیفہ بغداد کا ہو گیا، یعنی دنیا کا خلیفہ ہو گیا یہ، اور اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں تھا کہ خراسان کو سنبھالے، اس لیے اس نے وہاں پر طاہر ذوالجلالین کے حوالے خراسان کو کر دیا. اور جو آپ پڑھتے ہیں کہ 205 ہجری میں پہلی بار آزادانہ حکومت دوبارہ جو ہے ایران میں طاہر ذوالجلالین کی قائم ہوئی، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں، دورہ طاہریہ. اور یہیں سے فارسی کے زبان کا ارتقاء اور شاعری کی شروعات ہو جاتی ہے، جس میں سرفہرست جو ہے حمداللہ بازرسی کا نام ہے، اور اس کا آپ نے پتہ سنا ہی ہوگا. اور کیونکہ ہم اسی کی طرف پڑھ رہے ہیں، اس لیے خطے کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور یہاں تک کہ 205 سے 259 تک طاہریہ حکومت رہی. اس بیچ میں 45 سے لے کے 59 تک قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد صفائی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی. اور صفائی حکومت کے بعد تیسری حکومت جو ہے وہ سامانیوں کی شروع ہوتی ہے. اور یہاں سے باقاعدہ یہ لوگ سب کے سامنے آتے ہیں کہ روزگی ہیں، ابو شکور بلخی ہیں. اب جو مثنوی کا ارتقاء ہو رہا ہے، اب یہاں سے شروع ہوا مثنوی کا ارتقاء. یہاں ابو شکور بلخی ہیں، ابو المعید ہیں، روزگی ہیں. تو یہیں پر روزگی نے ربائی کا آغاز کیا، یعنی ربائی کو صرف سخن بنایا. اور پہلی بار رباعیہ جو ہے وہ روزگی نے لکھی. یہ بات میں ربائی صاحب کو بتانا بھول گیا تھا کہ پہلی بار رباعیہ جو ہے وہ روزگی نے لکھی ہیں. حالانکہ لوگ عربی میں کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے یا روزگی سے پہلے کوشش کرتے ہیں. ہاں، اسی زمانے میں روزگی کے بعد ابو شکور بلخی نے بھی ربائی لکھی ہے، لیکن مثنوی کہنے کا صحرا جو ہے سب سے پہلے وہ ابو شکور بلخی کے پاس ہے. اور ظاہر اپنی بات کہنے کے لیے جو چیز چاہیے تھی، مثنوی کی پہلے میں حیت میں بات کر لیتا ہوں کہ حیت کیا ہے مثنوی کے لیے. مثنوی کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تمام شعر جو ہیں مطلع کی طرح ہوتا ہے. مثنوی کا ہر شعر مطلع کی طرح ہوتا ہے. مطلع کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ پیچھے سے مطلع کیسے کہتے ہیں؟ بڑا زور سے جہاں سے شعر کا آغاز ہوتا ہے، جس مصرے سے شعر کا آغاز ہوتا ہے، مطلع کہتے ہیں. ردیف اور قافیہ، ہاں دونوں مصروں میں ہاں جس کے دو بیٹا اس میں چیز پڑھا، آپ نے صحیح کہا تھا. اس تھوڑی سی بات جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ جاندار ہے، پوری خوبت ہے کہ اس میں دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. ردیف نہ بھی ہو قافیہ، ردیف والا ضروری نہیں ہے، لیکن ہو بہتر ہوتی ہے.
لیکن مطلب کا اصلی مقصد یہ ہے کہ مطلب اسے کہتے ہیں جس میں دونوں مصروں میں ردیف و قافیہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو پہلے بدل چلتی ہے اور قصیدہ چلتا ہے اور قصیدہ چلتا ہے. لیکن مثنوی میں جو ہے وہ ہر شعر جو ہے وہ مطلب کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں قافیہ اور ردیف ہوگا. پہلی بات مثنوی کی پہلی بات کیا ہوئی کہ ہر شعر جو ہے وہ مطلع ہوگا. اس کے بعد جو سسٹم رکھا گیا وہاں پر مثنوی کا، وہی سسٹم اردو مثنویات میں بھی ہے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حمد ہو. اسی لیے اکثر مثنویات جو ہیں وہ بنام خدا، ابتدا میں کنم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہیں. خاص طور سے شاہنامے وغیرہ بعد جب خمسہ لکھا گیا، خمسہ کیسے لکھا ہے؟ نظامی نظامی تو کئی ہے. زور سے بولو. نظامی گنجی گنجے کا ہے، گنجا نہیں تھا، گنجے کا رہنے والا تھا. آپ مجھے گنجا ہو گنجا نہیں تھا بلکہ گنجے کا رہنے والا تھا، اس لیے گنجے بھی کہنا. ٹھیک ہے. تو اس نے جو خمسہ لکھا ایک طریقے سے مثنوی کی بڑی بنیاد جو ہے وہ بنی، اور وہیں سے اس کی جو مثنوی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہے. اور میں نے بتایا کہ علی اصغر حکمت نے اور ببیل صفا نے لکھا ہے کہ یہ 7 فصل اس کے ہیں، اور 7 فصل کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. میں آپ کو 7 فصل بتا بھی سکتا ہوں، بتا دیتا ہوں. لیکن وہ جو 7 فصل مثنوی عام طور سے کہے جاتے ہیں، اب تو کوئی کسی بھی نہیں کر سکتا ہے، ورنہ تو جو ہے پہلا جو شاہنامے کا وزن ہے وہ ہے فعودن 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 فعال. ٹھیک. یہ جس میں کہ شاہنامے کی ابتدا کتنے کی بھی بتا سکتے ہیں کتنے کی، کیونکہ اس میں روسیہ کے لوگ زیادہ ہیں کم معلومات ہوتی ہے. دقیقی کتنے کے لکھے 1000 شعر، اور وہ 1000 شعر جیوں کے تیوں جو ہیں وہ شاہنامے میں لکھ دیے گئے ہیں. اس کا پہلا شعر جو ہے اس کا جو شروع ہوتا ہے جہاں سے باغ نہیں آخری، ہاں باغ فسرو نہادن گوش حروز آمد الوقت بالوقت رخت، یہ سال شروع ہوتا ہے اس کا. اور اس کا ختم جو ختم یہاں پر ہوتا ہے. اور اس کے بعد 1000 شعر جو شامل ہے اس میں، تو لقیق اسی کے سر اس کا جو ہے وہ ہے، اور اس کو ختم کر دیا گیا لقیق اسی کو شاہنامے میں. یہ ایمانداری تھی فردوسی کی کہ اس نے 1000 شعر کو اس میں جمع کیا، اور اس کا نام بھی لقیق اسی کے نام پر ہی رکھا. تو اب بڑی مثنوی پہلی ہے وہ شاہنامے میں ہے، اور جو مثنویاں جو شروعات ہوئی ہے وہ ابو شکر برقی کی جو ہے آفرین نام آفرین نسل کا درباری نمائندہ شاعر ہے وہ، اور اس میں بہت سی مثنویاں اس میں. فارسی مثنوی کا پہلا شاعر مشکل برقی ہے، جو سامانی دور کے نوبل نسل کے دربار کا نمائندہ ہے. صوفی خیالات کا پیر میں تصوف سے شروع ہوتی ہے. اس کی مثنوی آخری نامہ جو 336 ہجری میں تقریباً لکھی گئی ہے، کہتا ہے خرد مند گویت خرد پادشاہ برخاست برآم برما ہوا. عقل کی تاریخ ہے، حالانکہ خرد میں اور عقل میں اکثر بحث رہی ہے تو الگ الگ باتیں اس میں، لیکن دل میں اور عقل میں خرد سے بات چیت الگ الگ باتیں ہیں. اور یہاں سے مثنوی کا آغاز ہوا، جس میں میں نے ابو شکر برقی کا آپ کا پہلا شعر جو ہے اس کی بنیادی تصوف پر ہے خرد مند گویت خرد پادشاہ. خرد مندوں کا کہنا یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے، سرداری جو ہے
وہ عقلمند جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کے حصے میں آتی ہے. عقلمند جو ہے وہی ہیں. خرد را تنے آدمی لشکرست ہمیشہ بتاؤ آرزو چکرست. خرد کیا ہے؟ آدمی کی لشکر کا کام کرتا ہے. اگر عقل آدمی کے پاس ہے تو وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ خرد کی جو ہے وہ چاکر یعنی نوکری طریقے سے کرتی ہیں. اس مثنوی کے ساتھ فارسی مثنوی کا ارتقا سفین افراد ہوا، جس کے فوراً بعد ایک دوسرے شاعر ابو الولید بلخی نے یوسف زلیخا لکھنے کے علاوہ رزمیہ اشعار بھی لکھے جن سے فردوسی یہ شاعر نے فائدہ اٹھایا. من القصہ فارسی کر دین بدود المعانی مسترد. اب ابھی ہم حیات کی بات کر رہے ہیں. حیاتی بات تھوڑی سی اور کرنا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہوئی کہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ بدلے کی طرح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام یا ائمہ اطہار کی تعریف کرتے ہیں. جو حصہ منقبت کہلاتا ہے، پہلا حصہ ہم کہلائے گا، میں نے بتایا تھا. دوسرا حصہ منقبت نعت کہلائے گا، اور تیسرا حصہ منقبت کہلائے گا. اس کے بعد اگر مثنوی کسی بادشاہ کے زمانے میں لکھی جا رہی ہے تو اس بادشاہ کی تعریف اس میں ہونا ضروری ہے. بادشاہ کی تعریف ہوتی ہے. اکثر مثنوی میں آپ دیکھیں گے تو وہ عام طور سے معلم بھی لوگوں نے اپنی مثنویوں کو بادشاہوں کے نام سے ہی کیا ہے. حیرت میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد اس میں ہمیں پلاٹ چاہیے ہوتا ہے. یعنی ہمیں قصہ کہنا کیا ہے. کوئی قصے کی پلاٹ ذہن میں ہوتا ہے، اس قصے کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثنوی میں اشتعارے اور کنائے خاص طور تحبیر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کسی دوسری جگہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے جتنی ضرورت جو ہے وہ مثنوی میں اشتعاروں کی اور تحبیر کی، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے ان کی. اور مثنوی جو ہے اگر ہم اشعار کے حساب سے دیکھیں تو وہ 5 شعر کی بھی مثنوی ہو سکتی ہے اور 60,000 شعر کی بھی مثنوی ہو سکتی ہے. میں نے 60,000 اس لیے کہا کہ 60,000 اشعار کا مجموعہ مثنوی ہمارے پاس ہے، ورنہ تو اس سے زیادہ اشعار بھی مثنوی میں ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی مثنوی جو ہے وہ شاہنامہ ہے، جو فعول فعال کے وزن پر ہے. اور اس کے بعد دوسری بڑی مثنوی جو کہلاتی ہے وہ کون سی ہے؟ مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. 26 اگر اصلی تو یہ ہے کہ شاہنامہ ظاہر دنیا کی بہت سے بڑا اصل ہے اور اس میں بات کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم مثنوی نام لیتے ہیں تو شاہنامہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے، بلکہ مثنوی مولانا روپ کا تصور ہمارے یہاں ابھرتا ہے. اب میں نے مثنوی کی آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی، اس میں حمد ہوتی ہے، اللہ کا نام شریف ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر بادشاہ کی تعریف ہوتی ہے. لیکن ہم جس مثنوی کا تصور کرتے ہیں مثنوی نام کر کے مثنوی معنوی، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ বিষ্ণু আজনে চন হিকায়াত মিকনাত. زور سے بولیے. विष्णु आजने जुदाई भाषा ٹھیک ہے. اس میں اللہ کی تعریف کے ہیں نہیں. حیات کے بارے میں بتاتا چلوں میں آپ کو. حیات پر اس کے جو شعر ہوں گے وہ ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہوں گے جس طرح کوئی زنجیر ہوتی ہے. ہمارے مفکرین نے، دانشوروں نے مثنوی کے اشعار کی سسٹم کو زنجیر کی پنڈی کی طرح بتایا ہے کہ اگر زنجیر میں سے آپ نے ایک پنڈا نکال دیا تو زنجیر بیکار ہو گئی، اس کا مفہوم کوئی باقی نہیں رہا. اسی طریقے سے آپ اگر مثنوی میں سے کوئی شعر بھی نکال دیں گے تو راستہ ٹوٹ جائے. اس لیے مثنوی کا شعر جو ہے اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے شعر سے اور اپنے بعد والے شعر سے مربوط ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس کا مثنوی کا جو بھی شعر ہوگا وہ اپنے پہلے شعر سے اور بعد والے شعر سے دونوں سے مربوط ہوگا. اسی لیے زنجیر پنڈے کے لیے کہا کہ ایک شعر نکال دیا ہم نے تو وہ مثنوی کا مفہوم جو ہے وہ ظاہر ہے. دوسری بات یہ استعداد بتا دی، یہ بتا دی، اور اب مثنوی کتنی طریقے کی ہوتی یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیے مثنوی اسی طریقے کہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن عام طور سے 3 طریقے کی مثنویات کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پہلی مثنوی صوفیانہ ہے.
दूसरी मसनवी रज़मिया, तीसरी मसीह तरबिया। ये 3 तरीके इसके लिए। इनमें तरबिया है उसके 2 तरीके होते हैं, वैसे हैं। एक वो जिनका अंजाम जो है खुशी पर खत्म होता है, और एक भी जिनका अंजाम जो है वो हुस्नियत पर, हुस्निया और जिसमें आशिक माहिर दोनों मर जाए, किसी एक पर बहुत ज़्यादा जुल्म और एक मर जाए। मजनू और लैला है, शेरी फरहाद है, इसका तर्ज हुस्निया है, ये सब। लेकिन बहुत सी मसलियाँ जो हैं वो लोगों के ख्याल है वो जिसमें निधन हो जाता है आखिर में, वो मसलबी जो है वो तरबिया। ये 2 किस्में तो तरबिया की हुई है। फिर तारीखी मसनवी जो रज़मिया है, रज़मिया का हिस्सा तारीखी मसनवी भी है। तारीखी मसनवी आमतौर से जो बाकायदा हिंदुस्तान में हुई है, खुसरो उसका पहला शायर है जिसने तारीखी मसनवियाँ लिखी हैं। वैसे तो जो शाहनामा है हमारा, वो भी वही तारीख ईरान की सासानी दौर तक की तारीख है, वो अकबरी दौर की सासानी दौर तक की तारीख है, और उसमें सब वो मौजूद है जो मौजूद होना चाहिए। तारीखी मसनवी है, लेकिन बाकायदा से हम कहेंगे कि बादशाह की तारीख दी जाए तो वो मसनवी जो है तारीखी मसनवी वो दूसरों ने शुरुआत की। उसके बाद बाकी अकबर के ज़माने में, शाहजहाँ के ज़माने में मसनवियाँ इस तरीके की लिखी गई। ये तो होगी मसनवी की हैत। अब तो हम बात मसनवी मानवी करें, वैसे 2 का वाक़ नहीं, लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई है, इसलिए मैं इस बात को मसनवी के सारे पहलू आ गए। मसनवी के जितने पहलू भी थे मैंने आपको बता दिए, सिस्टम बता दिया उसका कहने का। और अब मैं मसनवी मानवी पर 2 बातें और कह के अपनी बात खत्म कर देता हूँ। जो बात मैंने कही थी वो बात इसमें मसनवी मानवी में नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया बेटा 2 मिनट हो गए, थोड़ी देर लेट पहुंच जाना क्लास में। हमारी क्लास में लेट आते हो ना आप, फिर अटेंडेंस नहीं दूंगा फिर मैं। 2 गिलास के तो है ही। अगर माइक फिर ऊपर कर दिया। देखिए ये है मानवी सर ये फारसी से उर्दू बोलने लगी हैं। विष्णु है, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मसनवी मानवी को हर्ष कुरान 10 ज़बानें पहलवी भी कहा जाता है। ये पहलवी ज़बान का कुरान है। कुरान को वही से तो दूसरा देखिए, अल्लाह का कलाम होगा, बंदे कलाम ने मिसाल दी है। क्यों मिसाल दी है? क्योंकि इसमें अक्सर हिकायतें जो हैं वो कुरान शरीफ से मिलती जुलती हैं। कहीं कहीं कुरान शरीफ का बाकायदा है उसका इस्तेमाल हुआ है। जैसे खबरा मूसा साहिब था, कुरान शरीफ के अल्फाज बहुत इस्तेमाल हुए हैं। और कुरान शरीफ की एक सूरह का नाम है सूरह तौबा। सारी हिकायतों का दारोमदार जो है वो सूरह तौबा पर है। अगर आप पहली हिकायत पढ़ेंगे इन 18 शेर के अलावा जो विष्णु जिक्र शुरू होते हैं 18 शेर हैं तमहीद के, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिखाता है कि बहुत बड़ा आदमी गुनहगार में इस्तेमाल हो गया। जितना गुनाह हो सकता था उतना गुनाह उसने कर लिया है। और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह बताया गया ज़िनाकारी है, और ज़िनाकारी भी किसी शादीशुदा औरत के साथ में तो सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है। और ये सब चीज़ें जो है पहले उभारता है ये रूमी, और उसके बाद वो उसके किताब को इस तरीके से बदल देता है कि वो तौबा करते हैं। और तौबा करने के बाद तौबा के बारे में हुजूर ने कहा ही है कि किसी ने तौबा दिल से कर ली है और फिर गुनाहों की तो तसव्वुर नहीं जाता है तो उसकी हैसियत ऐसी है जैसे कि वो पैदा हुआ है। कुरान शरीफ की एक सूरत सूरह तौबा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती है, फकत एक सूरत ऐसी है। और मैंने बताया कि मसनवी मानी पूरी सूरह तौबा की तफसीर में है। अहमद साहब मुस्कुरा रहे हैं, देवबंद के बड़े भी खतरनाक आदमी है, लेकिन आपको सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा फलो ओपन वो होता है। सूरह तौबा किस लफ्ज़ से शुरू होती है? कौन सा अर्थ हुआ?
बे, यानी जिस हर्फ से वो सूरा शुरू हो रहा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, उसी हर्फ से मौलाना ने अपनी मसनवी को शुरू किया है ताकि लोगों के जहन में ये बात रहे कि हम जो है वो सूरह तौबा की तहस्सी में लिख रहे हैं और तमाम मसनवियों के तरीके से ना बनाम खुदा इब्तिदाई कलम कर रहे हैं, ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रहे हैं, और ना खुदा के किसी और नाम से रिज़्क़ और राज़े ख़लाक़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब कुल्ली तौर पर ये जो है वो इस्तेमाल हो गया इसका बेस। अब एक बात ये तय हुई कि ये मसनवी भी है, कुरान शरीफ की एक अहम सूरत की शायद में चल रही है, इसलिए पूरा तसव्वुर कुरान का जो है इसके अंदर बे के अंदर मौजूद है। अब आप सोचें बे के अंदर कुरान शरीफ का पूरा कैसे समझ के आ जाएगा। वो मैं आपको शियत से को सर्व करा सकता हूँ, पता नहीं अगर सुन्नत में तकलीफ है कि नहीं, हमारे यहाँ क्यों क्योंकि मौलाना जितने भी तसव्वुर वाले हैं वो सब के सब जो है वो बैत जो है मौलानी से, सारे सिलसिले जो है वो मौलानी से शुरू होते हैं। बहुत ज़माने तक मैं समझता रहा कि नक्शबंदिया जो है वो मौलानी से शुरू नहीं हुआ है बल्कि वो दूसरी तरफ जाता है। तो हम बिहार में एक मुनव्वर खानका है, तो शमी मुनव्वी साहब के पास बैठी हुए तो बहस हो रही थी, शमी नहीं था तो जानते उनसे बहस हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए एक सिलसिला ऐसा है जो मौलानी तक नहीं पहुँचता है, नक्शबंदिया। करवाने है क्या बात, कोई भी ये बताइए जब कोई सिलसिला इमाम जामा सादिक अलैहिस्सलाम तक आ गया, ये सिलसिला जो है वो इमाम जामा सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, उसके बाद वो उनकी ननिहाल में ले जाते हैं। वो भी ननिहाल में क्यों जाएगा, जब दयाल में साथ लोग हैं तो मैंने साहब मुझसे कहे जिंदा है बोले हाँ कि जब भाई दयाल के लोग इस बात के हैं और ननिहाल में क्यों लेके जा रहे हैं इसे। अब मैं सोचूं मैंने बहुत मकानों में लिखा था उनके सिलसिला जो है वो उसका बताया का सिलसिला से तक नहीं पहुँचता है। अब जो उन्होंने कहा तो मैंने कभी शरा इस तरीके से देखेंगे भाई जहाँ मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जमीदारुद्दीन आबिदुद्दीन अलैहिस्सलाम जो सबके सब तकिया सिलसिले में हैं, सबसे कुलिया सिलसिले में हैं, जो कादिर सिलसिले में खासतौर से सबके सब में आके मामले शुरू होता है। कादिर सिलसिला अहमदुल्लाह खान साहब का जो पूरा पढ़ा जाता है लाखों सलाम, उसमें भी ये जो है वो कादिर सिलसिला पूरा यहीं से आता है, मालूम करके वाशे में और चल देता है। तो मैं सोचा ये एक बात पूरा ऐसी करने सामने उधर कैसे जाएगा ये, जब देहात में ऐसे लोग अगर देहात में नाना के लोग होते तो दुनिया की तरफ ले जाते हैं। जब यही किस्माई के लोग मौजूद हैं जो कादिरिया सबसे बड़ा सिलसिला जो है उसमें जाके तो होते हैं और जिसके से हसन बसरी से एक तरफ पहुँचता है एक दर्जन पहुँचती है। तो इस सूरत से अब अंदाजा ये होगा सारा के सारे सिलसिले जो है वो हम तैयब सलाम तक पहुँचते हैं। अब हर तैयब सलाम का अपना एक कौल है, इमरान साहब का कौल जो है वो कहते हैं कि जो कुछ जो कुरान में है वो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, हम भी मानते सभी मानते हैं, और जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बे में है। और बे को पहचाना बहुत ही काम है, और जो कुछ बे में है वो बे के उस नुक्ते में है। लोग तज्जुब करते थे उस जमाने में कि नुक्ते में कुरान शरीफ कैसे मिट के आ जाता है, क्या साइंस ने साबित कर दिया है कंप्यूटर में एक ही पॉइंट है, इसके अंदर पूरा कोई पता चला कुरान नहीं दसियों कुरान खुल जाएंगे एक हफ्ते से। उस वक्त का तसव्वुर देखिए, उस वक्त का आदम मौलानी ने तो जो कुछ कुरान में है वो देखिए एक नुक्ते में है। आज साइंस ने कंप्यूटर ने साबित की है कि एक नुक्ते में फक्त कुरान ही नहीं बल्कि सारी अहादीस जितनी भी हैं 1,00,000 जो बुखारी में है 4 लाख में से बनाई है सबके सब एक नुक्ते में आ सकती हैं, आ गई हैं, आती हैं, आई। और फिर बाद वो कहते हैं कि अना नुक्ततुल तजुर्बा, और देखे नीचे का नुक्ता नहीं है। तो विष्णु से दो चीज़ समझ में आई, एक तो वो चीज़ कि कुरान जो है वो इस देखे नुक्ते में मौजूद है, और जो तसव्वुर के सिलसिले हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं उनकी मौजूदगी जो इसमें यहाँ पर है। इसलिए खबर एक ही मतलब ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुदा के नाम से शुरू न होकर कुरान के इस तसव्वुर में आती है। कुरान में जो तजवीज़ सही मानते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो बेके नुक्ते हैं, वो मेरा नुक्ता जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होने के बाद ये बात बताता है। इसलिए अगर आप मसनवी में इतना ही बताना
और फिर आपको पूछना, मैंने उसके तरीके बता दिए, सिस्टम बता दिया, उसके प्रश्न बता दिए आपको, उसके बाद कोई सवाल आपका हो और फिर आप